requesting Mr. Savio D'Souza to please come forward. Requesting Poonam to get into a tremendous program right now. You can go ahead. So the problem that we thought was that we have a lot of waste. Everywhere we go around in the world, there is a lot of waste that is being generated, and this waste needs to be diverted in a way that we are able to do something about it. And this is a small step that Green Soul Foundation has come up with, where we are upcycling footwear and apparels into bags, mats, and slippers. So the problem and the solution, as I said, we can go ahead and cover this. So these are the sustainability goals that we cover: good health and well-being, gender equality, industrial innovation, social impact, and financial empowerment. So we are trying to mitigate less pollution that is being generated by the land audit for the carbon emission every year, and how are we impacting their lives, giving case stories and all of that. I have a very interesting story that I just can recall. So Amol once told me, I recently joined Green Soul, and Amol once told me that in one village, he was just doing a feedback visit, and during his visit, he saw that children are not wearing the footwear that was provided to them. And to his surprise, he went and asked them, okay, why are you not wearing the footwear that we gave you some time back? And what did they say touched me so badly. So they said that we have only one pair of footwear and our parents want us to keep it for special occasions. So whatever was given to them also, they are not supposed to wear it every day. It's such touching things for us, right? We don't even think about it. We must be having 5 pair of footwear, but we don't understand the importance of having the footwear. These are the achievements which are really commendable ones. We have over 7 lakh footwear upcycled and distributed among the vulnerable children. We have diverted 1 million discarded shoes from landfills, promoting sustainability. We have created a circular economy model, cycling connection operations. We also want to have a sustainability curriculum for the children where we are donating so that they also understand the importance of sustainability. And we also want to collaborate with different global partners who are working in the field of sustainability. These are some of our awards that we are been recognized with. As Shreyans also mentioned, we were in the Forbes Asia Under 30. Then we have the DBS Social Enterprise Grant. We have a Startup Sustainability Award. So thank you everyone. Thank you so much for your time, and I'm really sorry about your necks. हमारे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए और मैं जानबूझ के हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हम क्या बोलते हैं, उन्हें पता चलेगा, ठीक है, वो एक बात है। और उनके साथ उनको अगर अच्छा लग रहा है तो उनकी जैसी बातें करनी पड़ेगी। तो आई होप यू विल रिस्पॉन्ड टू मी। सो आई विल से ट्विंकल ट्विंकल, आगे का आपको पता ही है, ठीक है। सो लेट्स डू इट गाइस। ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर। यार बच्चों में नहीं करोगे क्या, वापस करेंगे। चलो ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर up above the like the diamond। क्या बात है, सबको याद है यार, गुड, सब पढ़े लिखे हैं। जस्ट किडिंग। एक क्लास में पास हुआ है, फिर वो शायद मुंबई में है। आई माइट बी रॉन्ग इन सम डिटेल्स बट प्लीज टेल मी फॉर दैट। तो मुंबई में आए, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया एंड फिर वो नगर सेवक बने। फिर नगर सेवक बनने के बाद उन्होंने एक जगह देखी, वहाँ पे ना कुछ पिग्स वगैरह घूम रहे थे, ठीक है, पिग्स घूम रहे थे। उन्होंने सोचा कि जगह वेस्ट क्यों हो रही है, वहाँ पे कुछ बना के। तो वो बहुत लोगों के पास गए, कभी मतलब जो आसपास के लोग हैं उनके पास गए, ऐसे कर करके उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जाना पड़ा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी द हाईएस्ट पोजीशन है, आईएएस ऑफिसर गेट्स इन स्टेट। सो ही वेंट टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वहां से उन्होंने परमिशन लिया और उस जगह पे उन्होंने कुछ तो बनाया। वो क्या बनाया हम देखते हैं वीडियो में। क्या है परिवर्तन, शिक्षा तुम समृद्धि करे। इस बागी को सार्थक करते हुए शिक्षा क्षेत्र में नवी मुंबई का नाम गौरवान्वित करने वाले रवाले आम्बेडकर नगर स्थित नवी मुंबई
हेलो हेलो। तो क्या आप बिलीव कर सकते हो इवन मोर देन दैट यहाँ पे स्कॉलरशिप होता है 4th में 7th में, वहाँ पे भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और जो फर्स्ट लड़की आई थी 9वीं मई में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो भी यही स्कूल से आई थी। और एक बात यह है, मतलब एक और बहुत सारा है, बिकॉज इन्होंने सर ने ऐसा किया है कि पानी का इंतजाम ऐसे करके, अगर बस्ती में पानी ना रहे तो बस्ती वाले लोग यहाँ पे आके स्कूल में पानी ले सकते हैं। मतलब he has done that water management, treatment, everything. And sustainability की बात करें तो he has also worked in that area. उन्होंने क्या देखा, और एक वापस देखा कि ये था पर्वत था, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे झाड़ नहीं है, तो ये अपने बच्चों को लेके, वॉलंटियर्स को लेके, 5000 लोगों को लेके उन्होंने 75,000 ट्रीज उधर वहाँ पे प्लांट किए और वो सर्वाइव कर रहे हैं। कभी कभी हम प्लांट करके निकल जाते हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं। और नमस्कार। मैं नहीं जानता था कि आज यहाँ मैं किसी का सम्मान करने आया हूँ या मेरा एक खुद का सम्मान यहाँ पर ना होगा। वास्तव में सम्मान जैसे चीज़ों में आकर के रहना मुझे कोई पसंद था नहीं और पसंद है भी नहीं। मैं बहुत कम प्रोग्राम में जाता हूँ और आज यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि ग्रीन सोल के माध्यम से कुछ पैदल बच्चों को कुछ सपोर्ट किया जा रहा है। मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, बाकी ये सारी चीज़ों से मुझे कोई लगाव नहीं है। फिर भी यहाँ उपस्थित ग्रीन सोल के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, झेवर स्कूल के प्रिंसिपल शिंदे सर और मीडिया प्रतिनिधि भाई और बहनों, वास्तव में जैसे मुझे बताया कि आप अगर बोलेंगे तो इंग्लिश में नहीं बोल सकता हूँ मैं। आपने जो बोला है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान पहले करा दी थी कि मैं स्कूल से बाहर बचपन में हो गया था, लेकिन मैं बाहर होने के बाद में अगर मुझे मौका मिला तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे उन लोगों को पढ़ाना चाहिए जिन्हें मौका नहीं मिला है। तो मैं जब काम करता था उस समय लोगों ने मुझे एक काउंसलर के नाते शिक्षक हमारा भले अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन अगर बच्चों को भाषा समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमारे कानों पे वो गाना गूंजता था, कानों ने बहिरा मुका परी नहीं, यानी कान से बहिरा बोल तो सकता है। तो फिर हमने रेफरेंडम का जो मतलब शुरुआत किया था, उसके बाद में 2009 में जैसे आज हम ग्रीन सोल के माध्यम से सेग्रीगेशन करके उसका यूज करते हैं, हमने भाषावार बच्चों का सेग्रीगेशन किया। जो राजर्षि साहू महाराज विद्यालय 2002 में बना था, 2009 में उसमें हमने सेग्रीगेशन किया। आज 3000 बच्चे हिंदी भाषिक अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और 3.5 से अधिक बच्चे मराठी भाषा में वहाँ पर पढ़ते हैं। मशीनों से 7 दिन में देते हैं। और जब हमारे स्कूल में एमएलए का विजिट हुआ था, एक टीम आती है एमएलए की, और जब स्कूल में आई तो जिना उत्तर देवे उनका जूता तो था वो टूट गया, चप्पल टूट गई, अभी क्या करेंगे? तो हमारे पास आप जैसे भी दिए हुए जो पेटा रहे थे हमने खोल दिए और रखा, तो वो तो चौंक गए। तो उन्होंने कहा आज भी ऐसे बाप लोग हैं जो देखते हैं कि मेरी जो यहाँ पर जितनी बेटी स्कूल में बेटियाँ हैं उनके पाँव में एक छाला न पड़ जाए, और ये काम जब आप करते हैं तो हमारे दिल को छूता है काम। तो आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, वास्तव में मैं गर्दन टेढ़ी करके देख नहीं सकता था उधर, क्योंकि 2 दिन से मेरी गर्दन फटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ आके वो ठीक हो गई है। हाँ, मतलब दर्द जो होता है वो अपने शरीर शारीरिक दर्द से अच्छा है कि मानसिक जो दर्द है उसको मिटाने का काम आप लोग जो कर रहे हो, इसको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। शिंदे साहब, वास्तव में वो भी अब यहाँ आने के बाद में पहचान हुई, लेकिन मैंने इस सभागृह में कुछ अगर ऐसा बोला होगा तो वो मेरा एक स्वभाव है, लेकिन गलतियाँ माफ करने के लिए होती है। और मुझे लगता है मैं गलती करता नहीं हूँ, जो मुझे मन में आता है वो बोलता हूँ। जितने लोग इस सभागृह में उपस्थित है, आप तो रोज यहाँ आते हैं, मैं पहली बार आया हूँ, और जहाँ मैं मेरा पढ़ाई हुआ, जहाँ से मैंने स्कूल छोड़ा था वो भी
1947 में वो स्कूल बनी है संगमनेर में, ज्ञान माता विद्यालय मिशनरी की स्कूल है। और आज भी जैसे नमस्कार। मैंने काफ़ी सारा लिख के लाया था, लेकिन उनका भाषण सुनने के बाद मन चाहता है कि मैं ना बोलूं। आदरणीय पूर्व मेयर साहब श्री सोनावणे जी, ग्रीन सोल के सब पदाधिकारी, मीडिया, मेरे कलीग्स और छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, स्कूल से आए हुए, और मेरे स्टूडेंट्स, सर आपका काम देख के बहुत अच्छा लगा। आपको आपका अभिनंदन। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जो कहा पॉलिटिक्स के बारे में कहा, तो ऐसा लगा कि सभी की बात आप कह रहे हैं, सभी यही सोचते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते। कोई बात करेगा तो कल आके कोई यहाँ से चली करेगा। डेवलपमेंट तो यही होनी चाहिए। हम लोग कोस्टल रोड को डेवलपमेंट यहाँ रजिस्टर है, और हमारे सब बच्चे ये कंपलसरी पहले 60 घंटे काम करते थे। अभी गवर्नमेंट को लगा कि जेवियर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जेवियर्स की मॉडल जो है ये कॉपी किया है पूरा देश में। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सब महाराष्ट्र में उन्होंने ये सोशल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारे बच्चे अभी 30 घंटे काम करते हैं, उन्होंने शुरू की थी। और अभी पूरे भारत भर अंध बच्चों को फ्री सर्विस हम देते हैं उनके जरिए। पूरे महाराष्ट्र में 4,500 जो कॉलेजेस हैं, वो कॉलेज के टीचर्स को हम सिखाते हैं कि अंध विद्यार्थियों के साथ उनको कैसे पढ़ाया जाए। वो हमारी स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट थी, वो IAS होके कलेक्टर बन गई। पहली पोस्ट हाई पोस्ट पे है। और एक बच्चा जो कोविड पीरियड में हमारे यहाँ आया था, याग्निक करके, पूरा विजिटिंग चैलेंज था। उसने जैसे विजिटिंग चैलेंज बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, साइंस करने में दिक्कत आती है, तो प्रैक्टिकल कैसे करें, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल, बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कैसे करें। लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं BSc करूँगा, BSc केमिस्ट्री, BSc बॉटनी करूँगा। और हमने डिसीजन लिया, उसका एडमिशन लिया। जब एडमिशन लिया तो सब टीचर्स घबरा गए कि कैसे पढ़ाएंगे उनको, क्योंकि वो केमिकल के साथ काम करेगा, कुछ गिर गया, एसिड्स के साथ काम करेगा, तो कैसे काम करेगा। तो हमारे यहाँ जो संस्था है XRCDC, उन्होंने हमारे टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी, और फिर वो याग्निक का पूरा कोर्स शुरू हुआ। उसमें बीच में कोविड आ गया। कोविड में उसके घर जाके हमने उसको केमिकल्स दिए, उसको जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसको घर जाके पढ़ाया। डायग्राम्स, उसको बॉटनी के सेक्शंस होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे सेक्शंस देखते हैं प्लांट्स के, लीव्स के, तो वो उसके लिए हाथ से समझ आए ऐसे डायग्राम्स हम लोगों ने बनाए। वो जो सेंटर है उन्होंने, और कैसे बनाए, तो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया उनके लिए। स्टूडेंट जो सोशल सर्विस करना चाहती है वो वहाँ जाके करती है, उनको हेल्प करती है, तो उन्होंने वो टैक्टाइल डायग्राम हाथ लगा के कहते हैं डायग्राम बनाए। और आज वो बच्चा BSc बॉटनी करके यहाँ से पास होके इटली में PhD किया, MSc भी किया उसने वहाँ, और PhD किया। जैसे हर साल मेरे कॉलेज में, यहाँ हमारे कॉलेज में 8-10 बच्चे रहते हैं, और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। ये रहा उन बच्चों के बारे में। लेकिन हम पूरे जो 22 डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट के हिसाब से है, वैसे हमारे यहाँ 150 बच्चे अलग अलग डिफरेंट नाम में रहेंगे, एग्जैक्टली नंबर मानेंगे, लेकिन हर एक डिसेबिलिटी की ये सब चीज़ें हम पिछले 40 साल से सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम के जरिए करते हैं। तो
आपके साथ कोलैबोरेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बच्चे आपके स्कूल में आके पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे साथ में लेके आप जो काम कर रहे हैं वो हम आगे बढ़ाएंगे। और एक बार फिर मैं ग्रीन सोल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज सुबह ही जो SIP प्रोग्राम जो मैं बता रहा हूँ, तो हर साल हर सेमिस्टर में नया ग्रुप को उसको इंट्रोड्यूस किया